ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں عرفان بھائی بتائیے سب خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، بس آپ لوگوں کی دعا ہے. جی فرمائیں. کیا تھا آپ نے؟ ہاں بھائی فری ہیں آپ؟ ہاں فری ہے. ارے بھائی ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا آپ سے، آپ کا پرسنلی سوال ہے. کیا بولے؟ پرسنلی سوال ہے آپ کا. اچھا بولیے. مطلب آپ کا ذاتی سوال ہے یہ. ہاں بولیے. اس کا دین سے لینا دینا کوئی نہیں ہے ابھی فی الحال. اچھی بات ہے، بولیے. ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مانیے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مطلب بھائی وہ بیماری ہو جائے، ہاں اور بیماری کے لیے اگر آپ علاج کے طور پہ پیشاب سے سورہ فاتحہ اگر آپ کو کوئی لکھنے کے لیے کہے تو کیا آپ پیشاب سے سورہ فاتحہ بھائی وہ لکھو گے کہ نہیں لکھو گے؟ فقہ حنفی میں جائز ہے. نہیں فقہ حنفی میں جائز ہے، اس کو ہٹائیے. آپ میرے بھائی آپ اپنے اوپر اس کو جائز کرو گے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. بھائی میں نے کیا کہا تھا، دینی سوال نہیں ہے، میں آپ سے آپ کا ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا. ہاں یہ فقہی ہے، روحانی علاج بولتے ہیں اس کو. میرے نزدیک جائز ہے. ارے عرفان چودھری بھائی اگر آپ کو پیشاب سے کوئی سورہ فاتحہ لکھنے کے لیے بولے تو کیا آپ لکھو گے یا نہیں؟ میرا سوال خالی اتنا ہے ذاتی آپ سے. کس کا پیشاب ہے؟ کس کا پیشاب؟ کسی کا بھی بھائی وہ پیشاب ہو، انسان کا، عورت کا، مرد کا، کتے کا، جانور کا، بکری کا، بیل کا، اونٹ کا، سور کا، کسی کا بھی پیشاب ہو. پیشاب کا جو ہے فقہ میں لکھا ہے کہ فقہ اس بات کی اجازت دیتی ہے اگر کوئی آدمی مرض کا شکار ہو اور اگر وہ سورہ فاتحہ پیشاب گائے کے پیشاب سے مل کر اس کو شفا ملتی ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے. ہاں تو یہ فقہ حنفی والوں نے اجازت دی ہے نا پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے کے لیے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو الحمدللہ بہت اچھے انسان ہو، تبلیغی مطلب بھائی وہ جماعت کے بہت بڑے ساتھی ہو، تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے تو کیا آپ پیشاب سے سورہ فاتحہ کو لکھو گے کہ نہیں لکھو گے؟ جس مطلب کو میں فالو کرتا ہوں اس میں عمل کر لوں گا، کیا فرق پڑنے والا. ہاں چلیے اب آتے ہیں پوائنٹ کی بات پہ. اب آپ کی مطلب ذاتی رائے ہو گئی، ٹھیک. اب آتے ہیں دینی بات پہ. ہاں پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا ہاں ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی کیا اللہ کے نبی نے کوئی ایسا علاج امت کو بتایا یا کبھی صحابی نے ایسا علاج مطلب بھائی خود اپنے اوپر کیا یا تابعی یا تبع تابعین نے؟ دم درود مانتے ہو آپ؟ ہیں دم کو مانتے ہو؟ دم کو؟ ہاں دم مانتے ہیں میرے بھائی. دم تو بھائی جو کتاب بھائی وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، دم کرنا اس کو مانتے ہیں. ہاں صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، قبیلہ غفار ہے، پتہ نہیں کون سا قبیلہ تھا وہ، ان کو جس کام کی بیماری ہو گئی تھی. ہاں ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے کہا گیا تو وہ اونٹ کا پیشاب پیے، موٹے تازے ہو گئے، لیکن انہوں نے اونٹ بھی مطلب شاید بھائی چوری ووری کر لیے تھے. تو وہ دیکھیے اونٹ کا پیشاب کو پینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا، اور اونٹ کا پیشاب کو آج کی سائنس بھی بھائی یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے کینسر کی علاج کی دوائیں بھی بھائی آج کل اس کے اوپر ڈاکٹر لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریسرچ کر رہے ہیں. اونٹ کا پیشاب ہمارے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو وہ جائز ہے، اس کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ یعنی کہ اللہ کے کلام کو پیشاب سے لکھنا تو پاک ہو گیا نا بھائی. تم رامائن لکھو یا سورہ فاتحہ تو کیا فرق پڑنے والا اس سے؟ نہیں تو پیشاب پاک ہو گیا. ارے جب پینے کا حکم دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام، گائے کا پیشاب پینے کو بولا. کتنی حدیث پڑھے ہو تم؟ کتنی حدیث پڑھے ہو بھائی؟ جتنی پڑھی اگر آپ کو بتا دیں گے تو آپ میرے بھائی رات کو سو نہیں پائیں گے. اچھا گائے کے پیشاب کی حدیث بھی لکھی ہے اور غالباً صحیح بخاری کے نہیں گائے کی پیشاب کی حدیث ذرا میرے بھائی بتائیے ذرا کہاں آپ نے پڑھی؟ وہ تو ابھی حوالہ کرنا پڑے گا میرے کو. نہیں حوالہ نہیں، مطلب کیا اس کے الفاظ کیا تھے اور مطلب کون سی کتاب میں تھے، خالی اب اتنا بتا دیجیے. حوالہ انشاءاللہ ہم نہیں مانگیں گے آپ سے. گائے کا ہی پیشاب ہے میرا، یہ شاید اونٹ کا ہے یا گائے کا ہے ذہن میں نہیں ہے،
नहीं देखिए, जितने जानते बूझते अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अब इसके आगे आप बोलिए, अल्लाह के नबी ने गाय का पेशाब पीने के बारे में कब बोला? गाय ऊँट का पेशाब है, हाँ ऊँट का ही है मेरे ख्याल से, शायद ऊँट का ही पेशाब के बारे में आया है। गाय के पेशाब के बारे में मेरे इल्म में अब तक ना मैंने सुना, ना पढ़ा, ना देखा कि गाय का पेशाब पीने को अल्लाह के नबी ने कहा। मैंने सुना था बहुत। अगर गाय का पेशाब पीना अगर जायज अगर अल्लाह के नबी साबित हो जाएगा ना, तो जो हमारे हिंदू भाई जो भाई वो गौमूत्र पी रहे हैं और मतलब भाई ये पतंजलि के प्रोडक्ट में जो गाय का पेशाब चल रहा है, तो फिर वो सब कुछ जायज भाई हमारे ऊपर हो जाएगा। वो तो देख लेंगे बाद में, मैं तहकीक करूंगा, फोन लगा के पूछूंगा। हाँ चलिए, खैर ये बताइए, देखिए पेशाब पीना है, वो ऊँट का पेशाब भाई अल्लाह के नबी की जबान से आ गया है, तो अगर अल्लाह न करे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए तो ये तो अल्लाह के नबी से साबित है, वो ऊँट का पेशाब पी सकता है। लेकिन अब ये उसको ऊँट के पेशाब में और दूध में उन दोनों को मिला के मात्रा में पीना है और इससे दवा भी इंशाल्लाह कैंसर के लिए बनने वाली है, तो वो मसला हटा दीजिए। यहाँ मसला हो रहा है पेशाब से अल्लाह के कलाम की सबसे अच्छी सूरत यानी कि सूरह फातिहा को लिखना इलाज के तौर पे, ये अल्लाह के नबी से साबित है या सहाबा से या ताबई से या तबे ताबई से? हेलो, हर चीज आप अल्लाह के नबी से साबित करने बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि हर चीज नहीं, इतना अहम मसला कि कुरान की आयत को पेशाब से लिखना, इसके बारे में तो हम भाई आपसे दलील लेंगे ना। अरे भैया, सारी रात के ऊपर बात करना चाहते हो क्या आप? नहीं, पेशा देखिए एक चीज बता दें, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला ने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है। हाँ, ठीक है। ऊँट का पेशाब हराम है? ऊँट का पेशाब हराम है भाई? ऊँट का पेशाब तो अल्लाह के नबी खुद पीने को कह रहे हैं ना, तो वो हराम कैसे होगा? हाँ, तो फिर उससे अगर किसी ने सूरह फातिहा लिख तो क्या एक काम करते हैं, आपसे पहले ऊँट के पेशाब के ऊपर ही बात कर लेते हैं ताकि बार बार आप ये ऊँट का पेशाब बीच में न डालें। ठीक है, बोलिए। है ना, ऊँट का पेशाब देखिए आपको बता दे रहे हैं एक आखिरी बार, इसके बाद आप ऊँट के पेशाब को ये आज के टॉपिक से हटाई दीजिएगा। ऊँट का पेशाब पीने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, तो ये बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है, इसका कोई भी मुसलमान भाई इनकार ही नहीं कर सकता। ठीक, तो इस ऊँट के पेशाब को हटा दीजिए भी आप। मतलब बात हो रही है पेशाब से सूरह फातिहा लिखने पे, तो पेशाब से सूरह फातिहा लिखना ये मेरे भाई क्या ये जायज है? अरे पाक चीज से लिखना, चाहे कुरान लिखो चाहे रामायण लिखो, अगर किसी को शिफा मिलती तो क्या है उसमें? अच्छा, मतलब कुरान और रामायण को आपने माजल्ला एक साथ आपने बोल दिया, बराबरी पे रख दिया। 1000 रामायण भी आ जाए तो एक अल्लाह के नबी की भाई हदीस के मुकाबले नहीं हो सकती है, और आपने उसको कलामुल्लाह के भाई मुताबिक कर दिया। सिंपल सी बात है कि जब ऊँट का पेशाब पाक है, नबी करीम भाई हद क्यों नहीं बोलते आप मेरे भाई? आपको अल्लाह का खौफ है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, पेशाब से सूरह फातिहा लिखना क्या ये साबित है कि नहीं है? साबित है तो इंशाल्लाह जायज है बिल्कुल। अरे हर चीज साबित होना जरूरी थोड़ी होता है। नहीं तो साबित नहीं होगी तो मेरे भाई क्या उसके ऊपर अमल कर लेंगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुद कहा था, मेरी किसी कॉल पे या मेरे राय पे अमल करने से पहले, फतवा देने से पहले उसकी दलील जान लेना, और अगर दलील अगर ना जाना तो मेरे कॉल पे फतवा देना हराम है। अदिल्ला अरबा में चौथा उसूल क्या है? अदिल्ला अरबा में चौथा उसूल क्या है? अदिल्ला अरबा में चौथा उसूल है कयास। कयास मुज्तहिद, बराबर। आप चलो कयास से ही साबित कर दो कि पेशाब से सूरह फातिहा भाई लिखना जायज है। चलो ठीक है, आपको ऑफर दे रहे हैं। हालांकि कयास आपके लिए उसूल नहीं है, आपके लिए इमाम का कौल उसूल है, लेकिन तब भी आपको हमने भीख में दे दिया कि आप चलिए, आपको कुरान हदीस इजमा कयास हमने आपको ऐसे भीख में दे दिया, आप इससे साबित कर दो। कुरान करीम के अंदर तो मिलेगा नहीं आपको ऊँट के पेशाब से कुरान लिखने के बारे में। देखिए आप जो हनफी फिका का मसला बता रहे हैं उसमें ना तो ऊँट के पेशाब का अल्फाज है ना ही गाय के पेशाब का अल्फाज है, उसमें है कि पेशाब या खून से सूरह फातिहा लिखना। अगर किसी के नक्सीर के भाई वो बीमारी हो जाए तो वो मतलब उसी खून से अपने माथे के ऊपर सूरह फातिहा लिखे, तो खून का वहाँ पर अल्फाज है
और भाई पेशाब का अल्फाज है। वहाँ पे ये ऊँट के, गाय के, कुत्ते के, बिल्ली के, इनके पेशाब का अल्फाज ही नहीं है, ना ही इंसान के पेशाब का अल्फाज है। तो वहाँ पर आप जायज चीज को लेंगे, नाजायज चीज को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यही कयास मुजतहिद होता है। नहीं, कयास मुजतहिद है। अभी कोई कह दे मतलब भाई वो लैट्रीन से सूरह फातिहा लिखना जायज है, तो हम उसको मेरे भाई क्या हम लैट्रीन को लैट्रीन ही तो समझेंगे? लैट्रिन हराम है क्या हलाल है? लैट्रिन हराम है क्या हलाल? भाई नापाक है। हाँ, तो नापाक चीज से कुरान कैसे लिखा जाएगा? तो फिर वही तो पूछ रहे ना, तो ये फतवा आपके वहाँ, तो फिर आपके कयास से ही मेरे भाई ये मतलब हराम हो गया। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, क्लासिका हंसी में लिखेला कि लेटरिन से कुरान लिखने। अरे ये तो मैंने मिसाल आपको दी ना, जैसे आप लोग मेरे भाई पेशाब से सूरह फातिहा लिखना को कह रहे हो, कल को कोई आ जाएगा कह देगा लैट्रिन से लिख दो, तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? चुपचाप हम दलील उससे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? हाँ, पेशाब से मुराद वो पाक पेशाब है जिसकी दलालत अहादीस के अंदर मिलती है, जैसे ऊँट का पेशाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने का हुक्म दिया। ये कयास आपका अपना है, आपके इमाम का नहीं है, ना ही आपके हनफी आलिमों का कयास है। अरे भैया अभी ये आपका कयास अपना है मेरे भाई। आप कब से हो गए मुजतहिद मेरे भाई? मैं आप कब से मुजतहिद हो गए जो आप अपना कयास करने लगे? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम। अच्छा, अल्लाह का फजल है कि आप इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह को भी पीछे छोड़ देंगे कयास करने में, है ना? इतने बड़े भाई आप सूफी कयासी हैं। मैं तो तुमको बोला ना कि वो इरफान चौधरी भाई, आप ठंडा पानी पी के अपने जहन पे जोर डालिए कि पेशाब ऐसी नापाक चीज से हम अल्लाह के कलाम को कैसे, और हनफी मसलक में क्या है, हनफी मसलक में ये है कि बिना वजू के कुरान को नहीं छू सकते, लेकिन पेशाब से सूरह फातिहा बराबर भाई वो लिख सकते हैं। तो तौबा तौबा तौबा, कितने गंदे अकायदे हैं हनफियों के यार। पेशाब बगैर वजू के तुम कुरान छू सकते हो तुम्हारे यहाँ? भाई देखिए, वजू जो मतलब भाई फर्ज है ना, कंडीशन, वो खाली दो इबादतों के लिए है, एक है नमाज और एक है तवाफ। उसके अलावा बाकी सब में सुन्नत है, मुस्तहब है, ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन जो फर्ज है, फर्ज बिना वजू के नमाज नहीं होगी, बिना वजू के भाई वो तवाफ नहीं होगा। लेकिन कोई भी ऐसी हदीस नहीं है कि बिना वजू के भाई कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। ये अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब भाई वो बिना वजू के मतलब भाई हमको कुरान पढ़ना चाहिए, बावजू होकर भी पढ़ सकते हैं। अगर वजू हमारा नहीं है और हम कहीं रास्ते में मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ सकते हैं बिना वजू के भी, कोई मसला नहीं है। अभी आपने क्या कहा कि ऐसी कोई हदीस नहीं है बिना वजू के कुरान पढ़ने की, यही बात बोली ना? हाँ हाँ, तो अभी अगर कोई मुसलमान कुरान करीम के ऊपर माज़अल्लाह खड़ा हो जावे या बैठ जावे या लेट जावे, तो इसके खिलाफ कोई हदीस है आपके पास? हाँ है। हाँ बताओ। हाँ देखिए, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के का भाई एक कलाम है, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर आज तक कोई भी सहाबी हाँ कभी ना तो पैर रख के खड़ा हुआ है, हाँ, ना ही कभी अपने पैरों से कुरान को भाई कुचला है, हाँ, ना ही उसके ऊपर ईंटें मारे हैं, ना ही कुरान के ऊपर थूका है, ना ही किसी ने कुरान के ऊपर पेशाब किया है, ना ही किसी ने कुरान की आयत को पेशाब से लिखा है। तो ये सारी बातें मेरे भाई ये कभी हुई नहीं, और आज अगर इसको कोई जायज कर देगा तो उससे दलील मांगेंगे हम। हेलो, आज का मुसलमान कर रहा है तो क्या कर रहा है? हदीस पेश करो, वो हदीस पेश करो मना वाली क्या कि कुरान पे जो चीज भाई जो चीज कभी हुई नहीं वो ऑटोमेटिक भाई वो मना हो जाएगी ना। आपको उसूल नहीं मालूम? अरे अल्लाह के बंदे, अच्छा एक बताइए, अल्लाह के नबी के दौर में मोबाइल था ही नहीं, तो अब मैं अल्लाह के नबी के दौर से भाई वो मोबाइल के मना की दलील कहाँ से दूं? जो चीज दौर में मौजूद ही नहीं है तो उसके बारे में मैं आपको मना की कहाँ दलील दूं? कया से मुजतहिद किसको बोलते हैं? अरे कया से मुजतहिद छोड़ो, पेशाब से सूरह फातिहा पे वापस आओ जल्दी। अच्छी बात है, पेशाब से सूरह फातिहा लिखना भाई ये बिल्कुल गलत है, ये नाजायज है। और मैं आपको भी राय दूंगा कि पेशाब से सूरह फातिहा को आप भाई कभी भी इलाज के तौर पे जायज इसको ना समझें, चाहे वो आपकी हनफी फिका में लिखा हो या अहले हदीस फिका में उतरा हुआ हो या शाफी फिका में उतरा हुआ हो। कुरान की हुर्मत है और कुरान की आयतों की तो भाई
एकदम उससे ज्यादा हुर्मत है। और सूरह फातिहा की तो सारी सूरतों में सबसे ज्यादा भाई वो हुर्मत है। ये उम्मुल दुआ है भाई, दुआओं की माँ है। अगर इसको कोई पेशाब से लिख रहा है, खून से लिख रहा है, तो ये सूरह फातिहा का मनमाना इस्तेमाल करना है। और हम मनमाना इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे, चाहे वो फिका हनफी का मसला हो या भाई वो मेरे घर की फिका का मसला हो। जो गलत है वो गलत है, हम छाती ठोक के कहते हैं गलत है। अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पथरी हो गई थी, पथरी के लिए मेरे दोस्तों ने कहा अरे यार ऑपरेशन क्या करोगे, बियर पीते रहो भाई तुम्हारी पथरी बाहर आ जाएगी। तो अगर उस समय हम भी कहते कि हाँ इलाज के तौर पे चलो हराम काम कर लें, नाजायज काम कर लें और बियर पी लेते हैं, हालांकि नशे के लिए हम नहीं पी रहे हैं, हमारी भाई मतलब भाई वो नियत है कि हम बियर पियेंगे तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर से हम मतलब स्पीड में पेशाब करेंगे तो पथरी हो सकता है हमारी बाहर आ जाए। लेकिन नहीं, ऐसा तो इलाज हमने नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है हमने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है। शिफा के और भी रास्ते हैं। अल्लाह के कलाम की बेइज्जती करके उसको पेशाब से लिख के अगर हम शिफा हासिल भी कर लें तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। हेलो भाई, ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि हम जिंदगी भर बीमार रहें, लेकिन कभी कुरान की बेइज्जती करके उसको पेशाब से लिख के हम अपनी शिफा भाई हम कभी हासिल नहीं करना चाहेंगे। ये मेरा मानना है। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि अल्लाह ताला मुझे ठीक करना है ठीक कर दे, लेकिन मैं तेरे भाई आयतों के साथ में इतना गंदा काम नहीं करूंगा। तुम कुरान के खिलाफ जा रहे हो जनाब, हैं? तुम कुरान के खिलाफ जा रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं। अगर भाई आप मेरे भाई कुरान से साबित कर दें कि अल्लाह के कलाम को पेशाब से लिखना जायज है इलाज के तौर पे, बतौर इलाज, तो इंशाल्लाह हम अपने आप को आज ही मान लेंगे कि हम गुस्ताखे कुरान है। बात खत्म हो गई आपकी, शुरू करूँ मैं? अरे शुरू क्या, बोलिए ना, आप इतनी देर से जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अभी तो तुम ही भाई हक बोलिए, हक निकालिए जबान से। हाँ तो हक ही निकालूंगा ना, बाकी थोड़ी निकालूंगा। नहीं भाई वो हक नहीं, हक 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 की तो बात बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हम सोचे मतलब आप भाई वो हम मतलब हकने वाले हैं फिर से। खैर बताइए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह के नाम का खाना और सूअर के गोश्त को हराम किया, ये बात मानते हो? हाँ मानते हैं, ये इलियास गुम्मद का मैंने वीडियो देख लिया है। अरे यार फिर इलियास गुम्मद के पास भाग गए तुम। अरे इलियास गुम्मद भी कह रहे थे कि जो चीज हराम है वो मजबूरी में हम खा सकते हैं, वो कर सकते हैं। हेलो, वो अब आप इसके ऊपर आएंगे तो वो मैं इलियास गुम्मद को जवाब में भाई मैं दे चुका हूँ, आप उसको छोड़िए। अच्छा, नई दलील लाइए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ सूअर को हराम किया वहाँ पर हाँ तो मजबूरी में खा सकते हैं ना, उसकी दुकान हम नहीं खोल सकते सूअर की कि जितने मजबूर लोग हैं आ जाए सूअर का यहाँ पे गोश्त मिलता है। अरे भैया जब तक तुम बोलते रहे मैं चुपचाप सुना, मैं बोलना शुरू किया फिर भी आप पूरे पातिया पे वापस आइए। आप सूअर कुत्ते बिल्ली पे ना भागिए इतनी देर से। अभी आप ऊँट के पेशाब पे भाग रहे थे, अब आप सूअर पे भागने लगे। दलील चाहिए ना आपको, दलील दे रहा हूँ। मुझे दलील चाहिए, आपका फालतू कयास नहीं चाहिए। हमें मालूम है आप भी भाई इलियास गुम्मद के फैन हो। जिस दिन इंशाल्लाह अफू खान की बात इलियास गुम्मद की होगी ना, इलियास गुम्मद बेचारा खून के आंसू रोएगा। जो उसने भाई अपनी फिका को साबित करने के लिए कुरान हदीस में तावील किया है ना, इतनी तावील तो मेरा भाई कोई शैतान भी ना करे जितना इलियास गुम्मद ने कर दिया है। तुम लोग तावील नहीं करते क्या? भाई तावील हम लोग शरई करते हैं, गैर शरई तावील हम लोग भाई नहीं करते हैं। क्या शरई तावील करते हैं? भाई शरई तावील भाई ये है, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई कब्रों पे बैठने वाला जो है उसको चाहिए कि भाई वो कब्रों पे ना बैठे बल्कि किसी आग के ऊपर बैठ जाए और वो आग उसके बदन को एकदम जला के उसके कपड़ों को बना के काला कोयला कर दे। तो ये जो हदीस है, अब इसमें बरेलवी लोग कहते हैं कि भाई ये मतलब किसके लिए हदीस है, किसके लिए है, तो हम उसमें तावील भाई हम लोग करते हैं शरई तावील कि आजकल के जो लोग कब्रों पे जाके बैठ जाते हैं, मुजाविर बन जाते हैं, ये उनके ताल्लुक से, तो इसको कहते हैं भाई तावील शरई। लेकिन एक होता है कि अपने मतलब को बचाने के लिए तावील करना, भाई वो अलग तावील होता है। हेलो, तावील नहीं, ये कयास है तुम्हारा। तावील अलग चीज है, कयास अलग चीज है। अरे आप हमें बताओगे तावील और कयास? आप मेरे भाई एक चीज आपको बता दे रहे हैं आज आखिरी बार, अहले हदीसों को समझाने की कोशिश आप ना क्या कीजिए। आप पहले खुद दीन समझ जाइए, उसके बाद अहले हदीसों को समझाया कीजिए।
जाहिल वाली बात करोगे, कयास कर रहे हो। अहले हदीसों को आप बताएंगे कयास क्या होता है, तावील क्या होता है? क्या आपको मालूम है? नहीं यार, मेरी एक चीज समझ नहीं आता, जब सब कुछ आप लोग को मालूम ही हो तो भाई फालतू में तकलीफ कर रहे हो। भाई आपको कयास भी मालूम है, तावील भी मालूम है, दोनों की तारीफ भी मालूम है, दोनों का फर्क भी मालूम है, इतनी बारीक बारीक चीजें भी मालूम है, उसके बावजूद तकलीफ कर रहे हो। वारे वाह भाई, तकलीफ तो जाहिलों के लिए थी ना, तकलीफ तो जाहिलों के लिए, और आप तो अल्लामा बने हो भाई। वारे वाह, तकलीफ से बात कर रहे हो तो तकलीफ कर रहे हो। भाई सूरे फातिहा से पेशाब को लिखना ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, लेकिन आपकी हनफी फिका का मसला ये बिल्कुल गलत है। और आपकी जो पर्सनल राय है, जो शुरुआत में आपने कहा था कि हाँ मेरी जाती राय है कि हाँ भाई मैं अपनी फिका, मैं हनफी फिका के ऊपर अमल करूंगा, तो आपका भाई जाती कॉल भी भाई ये नाजायज है। सुअर खाना जायज है क्या नाजायज है? सुअर खाना हराम है, हराम है ना। अगर आदमी हालत मजबूरी में हो तो फिर क्या करे वो? अगर तो भी हराम है सुअर। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हेलो मेरे भाई, कुरान नहीं पढ़ते। अरे सुअर तो हराम ही रहेगा ना, लेकिन वो खा रहा है, वो उसके लिए मतलब भाई वो कंडीशन जायज हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो हराम ना। वो हराम ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसको अपनी जान बचाना फर्ज है। ठीक। यहाँ पर ये जो सुअर खा रहा है, यहाँ पर इसके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का जज्बा नहीं है। ठीक, समझ में आई? नाफरमानी का जज्बा नहीं है, लेकिन ये खा रहा हालत मजबूरी में, ताकि मेरी जान बच जाए। इसको कोई खाना मुयसर नहीं हुआ, मजबूरन इसको खाना पड़ रहा है जी। तो ये हालत मजबूरी हुई जी। तो इससे सूरे फातिहा का पेशाब से मतलब लिखने का क्या ताल्लुक है? वो भी हाँ, अगर किसी को शिफा मिलती है तो हालत मजबूरी है। समझ में आए? आम तौर पे मना है, लेकिन हालत मजबूरी में अगर किसी को सूरे फातिहा पेशाब से लिख कर शिफा मिलती है। भाई मेरे खुशी के आंसू आ गए। अरे माशाअल्लाह, मेरे खुशी के आंसू आ गए। आपने अपने कयास में अपने आप को डुबो दिया। कैसे बताओ? देखिए, आप असल में भावनाओं में बह गए। आपने कहा कि सुअर खाना हराम है, लेकिन मतलब हालत मजबूरी में सुअर खा सकते हैं, और पेशाब से सूरे फातिहा लिखना भी मतलब भाई ये सही नहीं है, नाजायज है, लेकिन बीमारी से शिफा के लिए इसको कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला तो पहले कह रहे हैं ना कुरान में कि हमने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है, और पेशाब से सूरे फातिहा लिखना ये कौन सी बीमारी का इलाज है? उस पहले बीमारी का नाम बताया जाए। हराम दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज दवा से नहीं होगा, दम से नहीं होगा, लेकिन सूरे फातिहा को पेशाब से लिखने से उसका इलाज हो जाएगा? ऐसी कौन सी बीमारी नाम बताइए। बहुत सारी है, अभी मैं एक बीमारी बताओ ना, बहुत सारी तो दूर की। और दूसरी चीज, अगर सुअर, एक मिनट इरफान चौधरी भाई, अगर सुअर खाना भाई हराम है, चलिए हमने मान लिया, और मजबूरी में हम खाली इतना खाएंगे जिससे हमारा पेट भर जाए और हम जिंदा रह सके, वो भी मतलब भाई वो टेस्ट हम मतलब भाई वो ले लेके नहीं खाएंगे कि हाँ लज्जत हम ले लेके खा रहे हैं, क्योंकि सुअर का गोश्त हराम है। अपने दिल में सोचते हुए हम उसको खा तो लेंगे क्योंकि हमको अपनी जान बचानी है, लेकिन अब अगर कोई कहे कि हम सुअर का होटल खोल लेते हैं, कि आज जितने भाई वो मजबूर लोग हैं अब वो हमारे होटलों पे आएंगे सुअर खाने के लिए, तो ये नाजायज हो जाएगा। तो आप लोगों की जो हनफी फिका में ये फतवा है कि हाँ पेशाब से सूरे फातिहा लिखना जायज है, ये उन्होंने दुकान खोल ली है। तो दुकान नहीं खोलना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था बिल्कुल नाजायज है, इससे कोई शिफा नहीं होती है, शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, और कुरान की मेरे भाई वो तौहीन करके कोई शिफा नहीं मिलेगी, और अल्लाह की भी भाई वो कोई मदद नहीं आएगी। गैर मुकल्लिदों ने भी तो इसको लिखा है। चलिए खैर ठीक है मेरे भाई, आप समझोगे नहीं, हक बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। और इरफान चौधरी भाई आपकी मैं इतनी इज्जत करता था, मैंने सोचा था इस मसले पे तो कम से कम मेरे भाई आप ऐसी बात आप नहीं करेंगे, लेकिन आपका भी पता नहीं कौन सा ईमान है कि आप मेरे भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में ऐसी बीमारी है भाई जिसके इलाज के लिए आप अल्लाह के कलाम के साथ भी इतनी बेइज्जती करने के बाद उसको पेशाब से लिखने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। चलिए ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।